Okay. Can you see again the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So in the last lecture, what we have discussed the Jablonski diagram and then the various transitions, electronic transitions, that is the sigma, sigma star, and the other transitions which are occurred in the carbonyl compound. Now, this is the special type of reaction, that is a Norrish type 1. That is also we have discussed, but only one example we have seen. Now, again, also we have discussed the various characteristics of the Norrish type 1 reaction. Now, let me summarize what are the special types, or what are the. So, this is my last lecture. Are you getting my points? Yes, So ma'am. this definition. This is just a simple definition I have put over here. That is, here I have mentioned the acyclic saturated carbonyl compounds. In that case, we have just seen the acyclic, but other than the acyclic saturated compounds, carbonyl compounds, we the Norrish type 1 reaction also it also takes place in the saturated cyclic ketones, as well as the alpha, beta, gamma unsaturated ketones. You are getting my point. So last, for the sake of convenience, I have chosen only one example, and in that case, what we have discussed is only the. Okay, fine. So again, to summarize the things, I need to. So this is a Norrish type 1 reaction. So to summarize the things, what the points to be remembered over here, that the first point, we have to see that the reaction takes place in the carbonyl compound. The reaction takes place in the carbonyl compound, right? Then actually I want that rule rule lines. So this is what I want. Okay. Okay. So this is a simple Norrish type 1 reaction which takes place in the carbonyl compounds. This is the first point to be remembered. And those carbonyl compounds can be ketones. Generally, we do not see such reactions in the aldehydes, right? So the ketones are the substrate for the Norrish type 1 reaction. The second point to be remembered, that this reaction is also called as alpha cleavage reaction. This reaction is also called as alpha cleavage reaction. You got my point? So in the last lecture, I have explained how the alpha cleavage takes place in the Norrish type 1 reaction. So to summarize those points, the first point to be remembered, that the Norrish type 1, the substrates are carbonyl compounds, and which are the ketones. And the second point to be remembered, that the reaction takes place by alpha cleavage. So alpha cleavage happens in the Norrish type 1 reaction. The third point to be remembered, that the reaction is initiated by n-pi transition. As we know that only two types of transitions are very effective, that is a n-pi transition and the pi-pi transition.
right? As we know that there are non-bonding electrons which are present in the carbonyl compounds. So this n pi bond is effectively taken place over here. So n pi transition, or in some cases the pi pi transition also takes place. But the significant observation is this n pi transition takes place in the reaction. And the fourth point to be remembered, that the reaction generally carried out in the vapor phase. Generally reaction carried out in the vapor phase. Vapor phase reaction में the reactions are favorable. The reactions are favorable in the vapor phase. Understand? Then the next point to be remembered, that okay, the reaction is very much favorable in the vapor phase, but this vapor phase indicates the decarbonylation. The vapor phase, अगर इस टाइप के कुछ रिएक्शन कंडीशंस आपको दिए गए हैं, so this vapor phase reactions indicate the decarboxylation. That is a removal of carbon monoxide. Then the next point to be remembered, that okay, fine, the as we know that all the photochemical reactions, they are initiated by H nu, and the next step will be the formation of diradicals. So the formation of diradicals should be very, very stable. So just हायर केमिस्ट्री हमें सीखना है, और बाकी पिछला जो चीज है, लाइक इन द प्रीवियस क्लासेस व्हाट एवर वी हैव स्टडीड, डोंट फॉरगेट दैट. सो ऑल द बेसिक केमिस्ट्री हैज बीन इन्वॉल्व. के साथ ही साथ आपको पूरी बेसिक केमिस्ट्री की नॉलेज भी होना जरूरी है whenever you conduct any photochemical reactions, because in the photochemical reaction there are various intermediates are formed. Now all those, the stability of the intermediates and the formation of intermediates, how they are formed, that all the chemistry of all the intermediates you have studied in your earlier classes. So that information, one must have that information regarding the basic chemistry, regarding the chemistry of the various intermediates and the stability of the radicals. So the formation of diradicals, we have to focus on the stability. Okay, after the photolysis means there is a homolysis. What is the meaning of homolysis? Just ये भी point यहाँ पे हमें add करना है कि reaction is initiated by homolysis. Now the homolysis means, if we, for example, we have these two bonds, it means that इसको कैसे represent करेंगे? So two electrons are staying with and they are forming bond. If homolysis takes place, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये मैंने यहाँ पर एक ही चाहिए. सो दी होमोलिसिस का मीनिंग ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के पास रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन के पास रहेगा, दोनों का बॉन्ड टूट जाएगा. ठीक है, फोटोलिसिस में यही होता है, जो होमोलिसिस भी हम बोलते हैं कि अलग अलग दो एटम्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिसाइड करते हैं. ठीक है, सो द नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर दैट द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय द होमोलिसिस, मींस द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, और बाद में आती है उसकी स्टेबिलिटी. ठीक है, नाउ this is all about the very basic and the points to be remembered. This is the summary. And other than that, now actual last time what we have seen, that we have seen only the acyclic saturated ketones.
But the Norrish type 1 reaction, there are 3 types of Norrish type 1 reaction. So basics. So there are 3 types of Norrish type 1 reaction observed. Now, depending on the substrate, it is categorized into 3 types. The first type is, so which we have already discussed, that is the saturated, that is a saturated acyclic ketones. This is the first substrate we have discussed in the very first lecture. Then the second type is saturated cyclic ketones. Now the examples, we can see that the butanone, pentanone. Okay. And the third, on the basis of substrate, the third category is the beta gamma unsaturated ketones. Okay. Now, यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes. यहाँ तक? Yes, ma'am. इसमें कोई दिक्कत नहीं है? Okay. आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरियस types of reactions which are involved in the Norrish type 1 reaction. Okay, the first point to be remembered that the substrate should be carbonyl compounds, and especially they are the ketones. The next and the the most important point to be remembered that the Norrish type 1 reaction takes place by alpha cleavage. The reaction that is initiated by n-pi transition state. In general, the reactions are they are favorable in the vapor phase, right? And if the reaction undergoes in the vapor phase, it means that there is a decarboxylation. Decarboxylation happens in the vapor phase reactions. It takes place. अगर वेपर फेज रिएक्शन आपको दिया गया है, अगर वेपर फेज का कंडीशन आपको दिया गया हुआ है, इसका मतलब यही है कि आपको डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन वहां पर कंडक्ट करनी है, राइट? आपको करनी ही है अगर वेपर फेज की कंडीशन वहां पे दी हुई है. दूसरी कंडीशन आपको और एक याद रखनी है, दैट इज दी होमोलिसिस का पार्ट है. होमोलिसिस में आपको पता है देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स, है ना? ये बॉन्ड जो ब्रेक होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये फॉर एग्जांपल इफ दिस इज C1, दिस इज C2, so this is C1 and this is C2. So एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा ये C1 के पास रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है C2 के पास रहेगा. तो ये बेसिक केमिस्ट्री है. फिर आपको फोकस करना है कि जो भी रेडिकल इसमें फॉर्म हो रहा है, whatever radical has been formed after homolysis, you have to focus the stability of the sometimes in the cyclic ketones in the same substrate you are getting the diradicals. लेकिन अगर आपका असाइक्लिक सैचुरेटेड कीटोन है तो आपके पास होमोलिसिस होके 2 फ्रैगमेंट्स बनेंगे जिसमें आपको फिर भी स्टेबिलिटी को फोकस करना है, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ substrates, so there are various substrates we are focusing over here. So on the basis of substrates means reactants हम किस प्रकार के ले रहे हैं उसको अगर हम फोकस करते हैं, so we observe that there are various types of reaction are going to happen in the Norrish type 1 reactions which are happened in the saturated acyclic ketones, the saturated cyclic ketones. The examples here we have the butanone, pentanone, etc.
and the beta gamma saturated ketones. So let us see one by one. So let us focus the first type of reaction, that is a saturated ketones, जो हमने लास्ट टाइम हमने देखी थी, जिसमें सैचुरेटेड और साइक्लिक कीटोन है, ठीक है। नाउ on the basis of this saturated acyclic ketone, again there are three categories. So the reaction takes place in the symmetrical ketones. If your substrate is symmetrical, other point is if your ketones are asymmetrical. If the ketones are asymmetrical. And the third category is the depending on the stability. ये सारी चीजें एक जगह पे, अगर हमारे सामने अलीलिक फ्री रेडिकल आता है, अगर हमारे पास बेंजिलिक फ्री रेडिकल आता है, तो पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो चेंज हो जाती है, पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है। सो डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल, ये एक एस्पेक्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है, राइट। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज अ सिमेट्रिकल कीटोन, second category is asymmetrical acyclic ketone, and the third category is depending on the stability of the free radical which are formed in the photolysis. Now let us see one by one. Okay, so the symmetrical, I am focusing the symmetrical. इतना समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. रिस्पॉन्ड करो भाई, फिर जल्दी जल्दी आगे बढ़े। सो सिमेट्रिकल, जैसे मैंने बताया कि फॉर लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस दिस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2, राइट। अगर इसका मैकेनिज्म हम लिखना शुरू करते हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट n-pi ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। ये आपको हमेशा रिएक्शन कंडीशंस, नाउ द रिएक्शन इज, यहाँ पर मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी है। If I put the vapor phase, so what is expected over here? Decarboxylation. Decarboxylation is happening. लेकिन अभी मैंने कोई वेपर फेज वगैरह इस पे डाली हुई नहीं है। So let us see the different aspects जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे, but I would like to explain over here also. Now here what we can see that it is a symmetrical. Your ketone is symmetrical. ठीक है, तो पहला कंडीशन हमने ले लिया है कि हमने पहले कीटोन सिलेक्ट किया है, यानी कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड हमने किया। अब दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है कि हमें क्या लगाना है, अल्फा क्लीवेज डालना है, ठीक है। अल्फा क्लीवेज अगर मुझे डालना है, तो मैं अगर यहाँ पर देखो दो कंडीशन है, अभी ये यहाँ पे अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है, ठीक है। इफ आई कट ओवर हियर, तो मुझे ये रेडिकल मिलेगा, एक ये वाला रेडिकल मिलेगा और ये वाला रेडिकल मिलेगा। अगर मैं यहाँ कट करती हूँ तो मुझे सेम ही रेडिकल मिलेंगे। सो आई कैन टेक एनी वन, अल्फा 1 हम लेते हैं। सो व्हाट, बट बिफोर दैट आई मस्ट पुट द रिएक्शन कंडीशंस प्रॉपर। ये रिएक्शन कंडीशन आपको हमेशा हमेशा के लिए, सॉरी दिस इज 2, so this is a S1 and this is a अब आप बोलोगे कि मैडम ये बार बार आप नहीं लिखूंगी तो मार्क्स मेरे कटेंगे, है ना, यानी आपके भी कटेंगे। सो दिस इज T1, दिस इज अ T1, 1 over here. So this is ISC, right? What is ISC? Inter-system conversion. Inter-system crossing. Okay, this is the inter-system crossing. So this is my S0, this is my S1 and this is my T1. Okay, ये सिस्टम ही इसने क्रॉस किया है, सिंगलेट से लेके ट्रिपलेट में चला गया है।
यहां तक ठीक है। नाउ इसको मैं बाद में जैसे मैं बताती हूँ कि I1 तैयार होता है या फिर I2 तैयार होता है। सो व्हाट आर दोज I1 एंड I2 और I3? दोज आर ऑल इंटरमीडिएट्स, राइट? दोज आर ऑल इंटरमीडिएट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। सो instead of writing I1 and I2, so that is a simple diagrammatic representation of the any mechanism. Now so from where I should मैं कट कहाँ लगाऊं? मैं यहाँ लगा देती कट, ठीक है। अगर मैंने अल्फा 1 और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में कट लगाया तो मेरे पास अभी अब ये जो रिएक्शन हो रही है इसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी फोटोलिसिस। क्या बोलेंगे? प्राइमरी फोटोलिसिस। प्राइमरी फोटोलिसिस में हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमें दो रेडिकल्स मिल रहे हैं, CH3 CH2, ठीक है। और दूसरा रेडिकल है, so this is acyl radical and this is a alkyl radical. Sorry, this is a acyl and alkyl radical, ठीक है। This is a acyl। ये थोड़ा हाथ मेरा फिसल जाता है इससे, आदत नहीं है इससे। ओके, नाउ व्हाट इज द फेट ऑफ वंस दे आर फॉर्म्ड? तो जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, तो देर आर वंस आफ्टर फोटोलिसिस प्राइमरी इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। तो प्रोपोगेशन में हमें सेकेंडरी फोटोलिसिस देखने को, सेकेंडरी रिएक्शंस देखने को मिलती है, सेकेंडरी प्रोसेस जिसको बोलते। सो व्हाट आर दोज सेकेंडरी प्रोसेस? इसमें तीन चीजें लास्ट टाइम जैसे मैंने एक्सप्लेन की थी कि हमें तीन चीजें यहाँ पे पिछली बार हमने एक्सप्लेन किया था कि देर आर थ्री कंडीशन वी कैन ऑब्जर्व ओवर हियर। द फर्स्ट कंडीशन इज the decarboxylation and the alpha abstraction, which leads to the formation of ketenes and alkenes, and the intermolecular abstraction of hydrogen। ये समझ में आया? ये समझ में आया? हाँ। तो इसमें सेकेंडरी प्रोसेस में हमें कितनी चीजें देखने को मिलती है? पहला एस्पेक्ट हमें मिलता है कि पहला हम देखते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन। फर्स्ट एस्पेक्ट हम देखते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसको मैं डीकार्बोक्सिलेशन को देखने के लिए मैं पूरे ये मॉइटी को मैं फिर से वैसे के वैसे देखती हूँ। सो आई हैव दिस, सो आई विल फोकस ओनली ऑन दी असाइल रेडिकल, क्योंकि बाकी दूसरे को कंसिडर करना कोई मतलब नहीं है। इसके पास C डबल बॉन्ड है नहीं और हमें कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से निकालना है, राइट? सो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से निकलता है, आई एम गेटिंग दी अनदर रेडिकल, ठीक है। सो दिस इज सपोज टू बी योर फर्स्ट रेडिकल। सो दिस इज योर फर्स्ट रेडिकल and this is your second radical. As the molecule is symmetrical molecule होने की वजह से both radicals are same। समझ में आया? दोनों रेडिकल्स जो प्राइमरी फोटोलिसिस में और सेकेंडरी प्रोसेस में फॉर्म हुए हैं, वो दोनों भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की वजह से सेम रेडिकल्स फॉर्म हुए हैं। सो द रिएक्शन नाउ रिकॉम्बिनेशन, सो द decarboxylation will be terminated into recombination. Now this recombination means radical 1 combines with radical 2, ठीक है। तो देखते हैं अभी रेडिकल 1 क्या है हमारे इस केस में, दे आर सेम। रेडिकल 2 यहां पर सेम, ओके। सो आई एम गेटिंग हायर अल्केन्स, आई एम गेटिंग द हायर अल्केन्स ओवर हियर, CH3 CH2 CH2 CH3। So in the decarboxylation
What is the overall reaction? I can say that. So let us focus on this reaction is CH3, CH2, C double bond O, CH2, CH3. So if I say that there is a decarboxylation, so I must put the what reaction condition I must put? The reaction of the vapor phase or in the gaseous phase. Gaseous. Okay. So, and here, so the products are higher alkanes and the carbon monoxide. So these are the products. Okay. अगर आपको एग्जाम में इस प्रकार का कुछ दिया है and explain the mechanism, so you have to write down this mechanism which is given over here. Okay. This much explanation is expected over here. So this is a first process we have seen, that the decarboxylation. अब दूसरी प्रोसीजर मैंने क्या बताई है? दूसरी प्रोसीजर क्या है जो एक्सप्लेन लास्ट टाइम की थी हमने? That is a alpha abstraction. Alpha abstraction. Now let us see the second category, that is, or second type of reaction, that is a abstraction of alpha. So alpha abstraction of alpha hydrogen. ओके. अगेन दोनों सबस्ट्रेट जो है वो मैं नीचे ले लेती हूँ. दोनों देखो, प्राइमरी फोटोलिसिस में जो या प्राइमरी प्रोसेस में जो भी फॉर्म हुआ है वो तो वैसे के वैसे ही रहेगा. प्राइमरी प्रोसेस में हमें क्या मिला है? CH3 CH2 प्लस C डबल बॉन्ड O. असाइल एंड अल्काइल रेडिकल हमें प्राइमरी प्रोसेस में मिला है. ठीक है. और हम जो बात कर रहे हैं वो सेकेंडरी प्रोसेस की कर रहे हैं. ठीक है. सेकेंडरी प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं. प्राइमरी प्रोसेस के मैं रेडिकल्स वैसे के वैसे यहाँ पे लिख रही हूँ. सेकेंडरी प्रोसेस में हमें अभी एब्स्ट्रैक्शन करना है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा एच. नाउ अल्फा एच जो है, अब ये रेडिकल है, या तो यहां से फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो या तो यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, या तो ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा. नाउ अल्फा एब्स्ट्रैक्शन की बात अगर हम करते हैं तो दिस इज योर अल्फा एच. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो आई कैन रीराइट दिस एज, तो मैं इसको थोड़ा सा रीराइट करती हूं. ठीक है. So I can, ठीक है. Now there will be a alpha H abstraction. यहां पर एब्स्ट्रैक्शन कौन सा है? ये IH है. ठीक है. तो ये अल्फा एच है. ठीक है. ये इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया. ठीक है. ये इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया. ये बॉन्ड जो है ये यहां पर कोलैप्स हो गया. तो देखते हैं क्या बनता है हमारा. I have CH3, CH2 and one H which is abstracted from here. फिर अब देखो ये बॉन्ड यहां पर कोलैप्स हो गया है. सो आई कैन पुट अनदर बॉन्ड, है ना, जो H से डिराइव हुआ है. ये समझ में आपको? H ने ये दोनों का बॉन्ड निकल के एक, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है. ठीक है.
ये आफ्टर फोटोलिसिस ये इलेक्ट्रॉन जो इधर जाएगा, ये इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है, एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द कीटीन, दिस इज अ कीटीन। ये बड़ा अनस्टेबल होता है, इसकी आगे की रिएक्शंस हम बाद में देखते हैं। सो ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन टेक्स प्लेस ओवर हियर। फिर तीसरा टाइप हमने क्या एक्सप्लेन किया था, देखो तीसरा टाइप हमने देखा था कि इंटरमॉलिक्यूलर एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर एब्स्ट्रैक्शन में अल्डिहाइड्स एंड अल्कीन्स जो है वो फॉर्म होते हैं। यहाँ पर नहीं, नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अल्फा एब्स्ट्रैक्शन एंड द इंटरमॉलिक्यूलर? इसमें जो है अल्फा मीन्स जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है वो कार्बन असाइल से होता है, एंड इंटरमॉलिक्यूलर एब्स्ट्रैक्शन में जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन होता है वो अल्काइल रेडिकल से होता है। ये समझ में, आप इतनी बात समझ, ये अल्फा है, ये असाइल से होता है, असाइल सबस्ट्रेट से होता है एब्स्ट्रैक्शन, सबस्ट्रेट। ठीक है, एंड दिस इज योर थर्ड कैटेगरी इज द इंटरमॉलिक्यूलर। इसका माइक्रोफोन चालू है, देखो थोड़ा। इंटरमॉलिक्यूलर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें से जो है वो अल्काइल रेडिकल से होता है। ठीक है, और ये जो है ये असाइल रेडिकल से होता है, और वो भी अल्फा पोजीशन से होता है। ना हियर अगेन जो प्राइमरी प्रोसेस में जो फॉर्म हुए हैं वो रेडिकल्स हम देखते हैं, दैट इज अल्काइल रेडिकल एंड दी असाइल रेडिकल। ये मैं इसलिए अच्छे से ले रही हूं क्योंकि आपको आगे ये प्रोसेस, ये जो रिएक्शन है आपको एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने आगे जाके। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन और प्रोटॉन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दी अल्काइल रेडिकल। सो यहां से जो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करती हूँ, यहां पर मैं थोड़ा सा उसको रीअरेंज करती हूँ ताकि आपको फट से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसके पास दो प्रोटॉन्स है, तो देयर इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन एंड दिस बॉन्ड विल बी कोलैप्स ओवर हियर। सो अब हम सेकेंडरी प्रोसेस की बात करेंगे, विच इज सेकेंडरी प्रोसेस, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन टेक्स प्लेस ओवर हियर एंड there will be a formation of alkenes and aldehyde. ठीक है, this reaction is also called as disproportionation. This reaction is also called as disproportionation. जो हाइड्रोजन है ये यहां से आया है। ये सब इतनी बात समझ में आई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So in the last lecture we have also explained the stability के हमें कौन सा step follow करना है, that is the if we have a unsymmetrical ketone, if we have a unsymmetrical ketone. Okay, so अभी symmetrical ketone के बारे में समझ में आया। Now let us discuss about the unsymmetrical ketone. तो अनसिमेट्रिकल कीटोन की बात करते हैं आगे। सो असिमेट्रिकल कीटोन की बात करते हैं, लास्ट टाइम भी हमने एक्सप्लेन किया था। सो असिमेट्रिकल कीटोन की अगर बात हम करते हैं तो जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल भी कवर हो जाता है।
असिमेट्रिकल कीटोन्स, ठीक है। असिमेट्रिकल कीटोन्स में नाउ आई एम टेकिंग दिस वन. काकूजी आवाज करू नका, नंतर करा. So this is a ketone I am selecting. This is a asymmetrical ketone. ठीक है, सबसे पहले मैं इसको ऐसे के ऐसे ही लिख लेती हूँ बिकॉज आई नीड टू. यहाँ S0 डालना है आपको, यहाँ पे S1 डालना है और आपको यहाँ पे ISC होगा ये. एंड अगेन यू हैव टू पुट CH3 CH3 देन C डबल बॉन्ड. उसको वैसे के वैसे ही करना है, ओनली यहाँ पे स्टार आपको लगाना है. दिस इज अ स्टार T1 इसमें. ओके, यहाँ तक बात हम वैसे के वैसे आपको लिखनी है एंड लिखनी ही है. दैट इज अ पार्ट ऑफ योर मैकेनिज्म. ओके, नाउ द इन द प्राइमरी प्रोसेस व्हाट, नाउ कीटोन हमने ले लिया है. दूसरा हमें अभी क्या करना है, अल्फा क्लीवेज करना है. अब अल्फा क्लीवेज हमें अगर करना है तो हमारे पास कितने अल्फा है, दिस इज अल्फा 1 एंड दिस इज अल्फा 2. ठीक है, नाउ लेट अस सी द, अभी पहले हम अल्फा 1 एंड अल्फा 2. सो आई सिलेक्ट दिस एज, ठीक है. इसको हम अगर ऐसे लेते हैं CH3 CH3, सो विच पाथ आई हैव टू सिलेक्ट, ये आपको पता करना है. तो अगर मैं अल्फा 1 को मैं अगर फॉलो करती हूँ, अल्फा वन मतलब ये वाला, ठीक है. सो this will be a, I am getting acyl radical and the टर्शरी रेडिकल. और अगर मैं दूसरा पाथ करती हूं, ये मेरा हो गया अल्फा पाथ, अल्फा 1, ये हो गया मेरा अल्फा 2. ठीक है, इफ आई सिलेक्ट दिस पाथ, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, I am getting this type of radical. Now let me know the which path is feasible path, alpha 1 or alpha 2. Yes, Alpha 1. alpha 1 path is feasible because as we know that we should also focus on जो points हमने discuss किए थे यहाँ पर, जो points मैंने यहाँ पर डाले हैं कि हमें स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचना है, राइट. इंटरमीडिएट्स तो फॉर्म हो रहे हैं लेकिन साथ में हमें स्टेबिलिटी पे भी फोकस करना है. सो इन दिस केस हियर वी आर गेटिंग अ टर्शरी फ्री रेडिकल. ये कौन सा रेडिकल है, दिस इज अ, ठीक है. सो वी इफ वी सी द स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल्स, so tertiary is more stable than the secondary, than the primary and the zero. Okay, so alpha 1 path is the most feasible path, right? So I'll take this, I'll take it forward over here. So CH3, so CH2 and C double bond O plus, सॉरी हाँ प्लस, ये मेरा हो गया टर्शरी. ठीक है, ये हो गया मेरा प्राइमरी प्रोसेस. अब इसका सेकेंडरी प्रोसेस में हमें
तीनों चीजें देखो अभी कब डीकार्बोक्सिलेशन होने वाला है, कब अल्फा एब्स्ट्रैक्शन होगा, या कब what we can say the disproportionation होगा, depends on the what type of reaction conditions are giving to you. ठीक है, अगर हमें वेपर फेज दिया हुआ है इस केस में, तो हमें क्या करना है बताओ? अगर गैसियस गैस Decarboxylation. तो हमें डीकार्बोक्सिलेशन की ओर ही बढ़ना है। समझ में आया? सो डीकार्बोक्सिलेशन को अगर हम फोकस करते हैं तो हमें यहाँ पर ये रेडिकल मिलता है। ठीक है, और ये मेरा सो दिस इज माय फर्स्ट रेडिकल जो फॉर्म हुआ है प्राइमरी प्रोसेस में, और ये मेरा है दूसरा रेडिकल। इट इज नॉट प्राइमरी सेकेंडरी, ओके, आई एम गिविंग इट एज अ फर्स्ट रेडिकल, or I can say that this is a A radical and this is a B radical. Appropriate. So this is a B radical. So two different radicals are formed in the asymmetrical ketones. पहले कंडीशन में क्या था? सिमेट्रिकल कीटोन्स था, दोनों रेडिकल्स जो फॉर्म हुए थे वो दोनों के दोनों सेम थे। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी हमें व्हेन दे आफ्टर रिकॉम्बिनेशन यू विल गेट अ सिंगल प्रोडक्ट। नाउ हियर वी हैव now we have to terminate the reaction, so we have after recombination now again हमारे पास दो रेडिकल्स है, एक ये वाला रेडिकल है जो प्राइमरी फोटोलिसिस में मिला है, और दूसरा जो है ये वाला है। ठीक है, ये A है एंड ये B है। तो इसमें ऐसे ऑब्जर्व हुआ है कि देर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। नाउ विच आर दोज? सो A combines with B and B combines with B. So these are the two products which are observed over here. Now A combines with B means CH3, 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 CH2, CH3। ठीक है, तो ये फ्रैगमेंट जो है वो A का है, और ये वाला फ्रैगमेंट जो है वो B का है। ठीक है, so this is A and B. In other case, because this this is a free radical, you know, this is a free radical and A is more stable than B. A is more stable than B. So as far as the stability is concerned, A is less reactive. So recombinate, ये जो फॉर्म हुआ है बी रेडिकल, ये सेकंड प्रोसेस में फॉर्म हुआ है, ये सेकंड प्रोसेस में फॉर्म हुआ है। ये पहले प्रोसेस में फॉर्म हुआ है, इट हैज एम्पल टाइम, सो इट डज नॉट रिएक्ट वेरी इजीली, इट इज अ वेरी स्टेबल। ठीक है, तो ये दूसरा रेडिकल जो फॉर्म हुआ है, दिस इज अ प्राइमरी रेडिकल। द मोमेंट इट फॉर्म्स, इट अगेन रिकॉम्बाइन विथ इटसेल्फ, तो ये अपने आप में ही रिकम्बाइन हो जाता है। ठीक है, रिकम्बाइन होके बनता है ये प्रोडक्ट। तो ये फ्रैगमेंट जो है वो आपका एक बी है, और ये जो है दूसरा है। समझ में आया? सो ओवरऑल in this case, when we see that in the asymmetrical ketone, if we have CH3, CH2, C double bond O, CH3, 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 H nu, so H nu, how many products are over here? The A and B, AB plus BB plus CO. A means CH3, 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 and B is CH2, CH3, right? What is BB? CH3, CH2, CH2, CH3,
and CO. So these are the three products which are observed, which are obtained in the asymmetrical ketone. ये समझ में आया आपको? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now let us see the second category, that is a saturated acyclic हमने देखा, and we have also focused on the stability of the free radical. Okay. असिमेट्रिकल बनता है, सिमेट्रिकल बनता है, लेकिन तीसरा एस्पेक्ट आपको हमेशा याद रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज equally important in the Norrish type 1 reaction or in any reaction, in any chemical reaction. Now let us see the second category, that is the saturated cyclic ketones. The second category is saturated cyclic ketones. The second category is saturated cyclic ketones. Now here I can take this example. Okay, so this is a, क्या नाम है इसका? साइक्लो Hexanone. ठीक है. So this is a cyclohexanone. I am irradiating with HNO. Again, n-pi transition is effectively happening over here. So this is my S0 and I have this S1, then ISC, then this will be a, इतना आपको हर रिएक्शन में लिखना मैंडेटरी है. ये अगर है तो रिएक्शन ही नहीं होगी, ये समझ लेना. ओके, दिस इज अ फोटोलिसिस. इसके बाद एक्साइटेशन हुआ है. नाउ द प्राइमरी प्रोसेस विल टेक प्लेस. नाउ प्राइमरी प्रोसेस में अभी हम क्या करेंगे? अल्फा क्लीवेज. देखो सबसे पहले क्या लिया है हमने? हमारा सबस्ट्रेट लिया है कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड. ठीक है. फिर दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि अल्फा क्लीवेज करना है. अब अल्फा क्लीवेज मैं कहां से करूं? एज दिस इज अ सिमेट्रिकल कीटोन, है ना, इसमें भी हमें सिमेट्री देखनी जरूरी है. सिमेट्रिकल कीटोन, तो मैं अगर यहां से भी कट करती हूं, है ना, यहां से भी कट करती हूँ, यहां से कट करती हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. सो आई विल टेक सो दिस आई विल कट. ये इसको मैं फोकस करती हूँ so that I have this. ठीक है. So this is my first radical and this is, है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहा. समझ में आया? So this is a बाय रेडिकल. ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि जो भी फॉर्मेशन ऑफ बाय रेडिकल है, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में कॉर्नर ऑफ माइंड हमेशा बात चलनी चाहिए कि भाई इसकी स्टेबिलिटी क्या है. ठीक है. नाउ हियर वंस इट इज फॉर्म, अब इसमें जो अगर रिएक्शन कंडीशन आपको इसमें दी गई है कि वेपर फेज में करना है, तो क्या करोगे? अभी अगर वेपर फेज में करना है तो क्या करोगे? बताओ. डीकार्बोक्सिलेशन करोगे. ठीक है. अगर वेपर फेज में रिएक्शन करनी है तो डीकार्बोक्सिलेशन करोगे. तो वेपर फेज में मैं रिएक्शन करती हूं तो डीकार्बोक्सिलेशन यानी यहां से निकल जाएगा. तो क्या बनेगा मेरा? ठीक है. ये आपका आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन आपका रेडिकल मिला है या प्रोडक्ट मिला है. अब रिकॉम्बिनेशन आफ्टर डीकार्बो, दिस इज योर सेकेंडरी प्रोसेस. सेकेंडरी प्रोसेस के बाद हमें क्या करना होता है? टर्मिनेशन करना होता है. तो ये रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं.
अब ये जब रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमें हमेशा क्या फोकस करना है? स्टेबिलिटी ऑफ द बायरेडिकल। अच्छा, इसमें बायरेडिकल फॉर्म हुए हैं, ये तो कौन से है? ये प्राइमरी है, दोनों भी प्राइमरी है। समझ में आया? बोथ रेडिकल्स आर प्राइमरी रेडिकल्स। इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, ma'am. हाँ। तो रिएक्शन होगी क्या? रिएक्शन होगी क्या? हम्म? अगर हम इसकी बात करते हैं तो रिएक्शन होगी क्या, ये बताओ। हम्म? अरे बताओ भाई, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? उतना ही बताओ। हम्म? होगी क्या? हम्म? होगी कि नहीं होगी? या तो यस बोलो या तो नहीं बोलो। हम्म? हो सकती है। हो सकती है, पर ये रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो बायरेडिकल फॉर्म हुए हैं वो क्या है? वो क्या? Primary. प्राइमरी है। तो प्राइमरी फ्री रेडिकल्स आर वेरी अनस्टेबल। तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन होना नामुमकिन है। ठीक है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है, ये तो फॉर्म होता है, देखो भाई, बाय रेडिकल तो फॉर्म होगा। ठीक है। अब माय क्वेश्चन इज कि विच रिएक्शन इज फिजिबल ओवर हियर? तीन रिएक्शन कंडीशंस हमारे पास है। एक है वेपर फेज, दूसरी है अल्फा एब्स्ट्रैक्शन, और तीसरी चीज है इंटरमोलिकुलर। अब इसमें इंटरमोलिकुलर नहीं है, जबकि हमारा एक ही मॉलिक्यूल है। सो इंट्रामोलिकुलर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या एक स्ट्रेटेजी है, और तीसरी स्ट्रेटेजी है कि हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द अल्किल रेडिकल। अल्फा एच कहां से आएगा? ये असाइल रेडिकल से आता है। और एच एब्स्ट्रैक्शन कहां से आता है? Alkyl radical. Alkyl रेडिकल, है ना। अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबिलिटी? क्योंकि ये जो फॉर्म हुआ है बाय रेडिकल, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम सोचते हैं तो ये प्राइमरी रेडिकल फॉर्म करता है, एंड प्राइमरी रेडिकल आर वेरी वेरी अनस्टेबल, सो दिस रिएक्शन डजंट हैपन in the vapor phase. Now let us focus on this one. So here also what we observe that the abstraction of, अगर हम यहाँ बात करते हैं, देखो, अगर हम यहाँ की बात करते हैं, अगर हम हमेशा स्टेबिलिटी के बारे में ही सोचते हैं जब भी हम कुछ काम करते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखो, ये अल्फा एब्स्ट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक अल्केन मिलता है, और दूसरा क्या मिलता है? कीटीन मिलता है। ठीक है। तो हमें अल्फा एब्स्ट्रैक्शन करने से हमें कीटीन मिलेगा और हमें अल्किल मिलेगा। अगेन दिस विल बी वेरी अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी कौन देता है? ओनली दिस रिएक्शन और दिस स्टेप गिव यू मोर स्टेबिलिटी। क्योंकि इतना इसके पास टाइम थोड़ी होता है कि भाई मैं इधर जाऊं, कि मैं अल्फा एच करूं, कि मैं, जो स्टेबिलिटी देता है सबसे ज्यादा वो रिएक्शन तुम्हें फास्ट होती है। समझ में आया? क्योंकि ये फिर से किटिन देगा, किटिन फिर से अनस्टेबल होगा, फिर से उसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, यानी ये आगे बढ़ता जाएगा। बट इसमें वन स्टेप में रिएक्शन आपको मिल रही है, जो आपको एच एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द अल्केन। तो ये वाला सेंटर जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से होने जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करती हूं अभी। Right. Now this will be rearranged.
ठीक है, तो यहाँ पर जो है इतने प्रोटॉन्स है, तो ये कहाँ से प्रोटॉन ये हो रहा है, कहाँ से हो, अल्फा 5 कहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, यहाँ से होगा कि यहाँ से होगा? अल्फा पोजीशन से सेकंड। हाँ तो ये वाला जो सेंटर है वो देगा अपना प्रोटॉन। ठीक है, तो ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर जाएगा। तो इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं अभी। ठीक है, बस that's the procedure, that's the last thing. This is your product. This is your product. ठीक है, अब ये बात रही हमारी सिमेट्रिकल साइक्लिक कीटोन्स की। अब बात करते हैं ये समझ में आया आपको कि why vapor phase doesn't happen? Because you are getting the primary diradicals. So primary diradicals they do not exist because they are very unstable. So this अगर कोई इतनी अनस्टेबिलिटी के इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं तो ऐसी रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती, हमेशा याद रखना। फिर यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम असाइल है और एक अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम दी अल्केल ग्रुप से। अल्फा असाइल से अगर हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो कीटीन फॉर्म होता है। अगेन द कीटीन इज द मोस्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट वी आर ऑब्टेनिंग ओवर हियर, बट व्हेन वी फोकस ऑन द अल्फा एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द अल्केल रेडिकल, नाउ दिस ये फ्रैगमेंट से अगर हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं सो वी आर गेटिंग दी मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। इसको हम थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज अगर करते हैं तो ये हमेशा अल्फा बीटा अनसैचुरेशन देता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम कई बार एग्जाम में आपको इस प्रकार के चेंजेस मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, सो दिस इज अल्फा एंड बीटा। So alpha beta unsaturation is quite a stable molecule rather than this one. ठीक है, तो इस प्रकार के ही भी what we can say the structures आपको मिलेंगे, resonating structures. Now the second category is the, अभी हमारे पास है 11 बजे तक पढ़ाऊंगी मैं, चलेगा ना? यस, सो गए क्या? यस भाई जागो। यस मैम। है ना, 11 बजे तक पढ़ा देती हूँ। ठीक है, कंटाळा आला का सगळ्यांना? नाही मॅम, थकले नहीं ना? नाही. Because this is very interesting, you know. Now the second type is पहले हमने सिमेट्रिकल कीटोन देखा, नाउ asymmetrical cyclic कीटोन। ठीक है, असिमेट्रिकल साइक्लिक कीटोन के बारे में अगर हम सोचते हैं, सो वी हैव, सो दिस इज अ, नाउ मुझे इसको असिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिकल, मुझे इसको असिमेट्रिक बनाना है, सो आई विल पुट CH3 ओवर हियर। ठीक है, फिर वही चीज मुझे करनी है एट S0, फिर मैं वही चीज करूंगी जो मुझे मैकेनिज्म में लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, S1 ये करेगा IC। कई बार ऐसे होता है कि डायरेक्ट ट्रिपलेट स्टेट से भी रिएक्शन होती है, दे डोंट नीड टू गो फॉर सिंगलेट स्टेट, तो उसमें सेंसिटाइजेशन बोलते हैं, वो मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन। सो S1 एंड T1 यहां तक हो गई बात। नाउ लेट अस सी द प्राइमरी प्रोसेस। जी मला चहा गरम करून नाउ लेट अस सी द प्राइमरी प्रोसेस।
Now you focus on this substrate. You know that this is a asymmetrical cyclic ketone. अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, मेरे पास एक अल्फा 1 है और मेरे पास अल्फा 2 है, राइट? सो विच कार्बोनिल कंपाउंड तो मैंने ले लिया है। मैं हमेशा साइड में इसलिए लिखती हूँ कि बार बार आपको ये चीजें ध्यान में रहनी है, सिलेक्शन ऑफ सबस्ट्रेट, एंड बाद में आपको इमीडिएट क्या करना है, अल्फा क्लीवेज करना है। अब कहाँ का क्लीवेज आप करोगे, यहां से क्लीवेज करोगे कि यहां से करोगे? सो अल्फा 2 इज फिजिबल बिकॉज highly substituted carbon undergo alpha cleavage. इतना समझ लेना, ठीक है? highly substituted carbon undergo cleavage. यहाँ पे कौन सा है highly substituted? अल्फा 2, ये वाला हाईली सब्स्टिट्यूटेड है। इसमें क्या है, H लगा हुआ है, इस पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। CH3 will follow the alpha 2 cleavage, ठीक है? अल्फा 2 क्लीवेज अगर मैं लेती हूं तो अभी मेरे पास देखो क्या है, प्राइमरी कहाँ गया भाई ये, चलो ये प्राइमरी, ठीक है? सो दिस इज अ प्राइमरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस में मुझे क्या मिलेगा, अल्फा क्लीवेज मिलेगा। सो द अल्फा क्लीवेज विल बी लाइक दिस। ठीक है, अल्फा अल्फा क्यों नहीं सिलेक्ट हो रही है? ओके, अरे क्या हो गया? ओके, सो दिस इज अ अल्फा क्लीवेज। ठीक है, अब मैं डॉट्स कहाँ पे लगाऊं? देखो डॉट्स कहाँ लगाना बहुत जरूरी है। ये दोनों के बीच में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? जैसे फोटोलिसिस होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के पास रहता है। ये इलेक्ट्रॉन गया इसके साथ, दूसरा गया इसके साथ। इतना समझ में आया? फोटोलिसिस करने में आपको अगर है तो बाय रेडिकल कहाँ पर डालना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है? ये हो गया आपका। अब ये कौन सा वाई दी अल्फा 2 इज फिजिबल, इसका आंसर आपको मिला क्या? हाईली सब्स्टिट्यूटेड में मुझे क्या मिला है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। इसमें मिला है सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अगर मैं इसको कट करती हूं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, प्राइमरी रेडिकल, ठीक है? तो प्राइमरी रेडिकल इज वेरी अनस्टेबल एंड सेकेंडरी रेडिकल इज कंपैरेटिवली स्टेबल, ठीक है? एंड दैट्स व्हाई द अल्फा 2 क्लीवेज इज फिजिबल ओवर हियर। चलो अभी मेरे पास ये दो चीजें मेरे पास मिल गई है। अब इसका क्या करेंगे बताओ, इसको क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। क्या इसमें फिजिबल क्या है, एब्स्ट्रैक्शन फिजिबल है या फिर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन फिजिबल है? बिकॉज in the earlier cases we have seen that the vapor phase, if we put vapor phase condition, we are having the, करके देखते हैं इसमें भी वेपर फेज का। वेपर फेज करने से हमें क्या मिलता है, देखो
अगर हम वेपर फेज करते हैं तो हमें करके देखना चाहिए ना। वेपर फेज करके देखो, इसमें से क्या मिलेगा। वेपर फेज करने से ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होने वाला है, ठीक है। तो ये मिला तुम्हारा, ठीक है। और ये समझ में आया आपको। अब इसमें देखो कि सेकेंडरी जो है, दिस इज क्वाइट, ये एक फिजिबल पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है, ठीक है। सो इन दिस केस रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ पर री, ठीक है, यहाँ पर जो है रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी बन सकती है, जिसमें दे two will get recombined and you will get the formation of, so 5-membered ring is quite stable over here. So because of this secondary radical, this is the quite feasible possibility, ठीक है। अगर ये आपको रिएक्शन कंडीशन दी गई है तो ये आप एक प्रोडक्ट आप बता सकते हो। दूसरी पॉसिबिलिटी हम करके देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो हमें क्या हमेशा याद रखना है कि शैल आई एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम असाइल रेडिकल और अल्काइल रेडिकल, बताओ। अल्काइल। अल्काइल से ही मैं करूंगी, क्योंकि मैं असाइल से अगर करती हूँ तो मुझे कीटीन मिलता है, एंड आई नो दैट द कीटीन इज द मोस्ट अनस्टेबल again product I am obtaining. But if I abstract the hydrogen from the alkyl radical, then I'll get the more the stable one. So let us focus on the second point. तो अभी देखो, इसमें अभी ये सेकेंडरी प्राइमरी प्रोसेस में, तो मैं अभी कहाँ से इसको थोड़ा सा रीअरेंज करती हूँ। देखो, अब यहां से भी एक पॉसिबिलिटी है और यहां से भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो कहां से एब्स्ट्रैक्ट करूंगी मैं, बताओ। एक यहां से पॉसिबिलिटी है और एक यहां से भी पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज द, ठीक है। यहां से मैं, क्योंकि यहां से मैं अगर करती हूं तो मुझे क्या मिलता है, अगेन प्राइमरी और सेकेंडरी की बात होनी ही है यहाँ पे, याद रखना। अगर मैं यहां से एब्स्ट्रैक्ट करूंगी तो यहाँ पे क्या मिलेगा, प्राइमरी रेडिकल मिलेगा, और मैं यहां से अगर एब्स्ट्रैक्ट करती हूं तो मुझे सेकेंडरी रेडिकल मिलता है। ये समझ में आ रही है क्या बात आपको? हेलो, यस। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, sir. है ना, दो पॉसिबिलिटी है। अब ये जो है इसके अल्फा, ये पोजीशन पे इसके अल्फा ये है, समझ में आया। तो यहाँ से भी होना चाहिए एब्स्ट्रैक्शन, पर यहाँ से नहीं होके यहाँ से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से अगर होगा तो ये प्राइमरी रेडिकल देगा, और हमें पता है कि प्राइमरी रेडिकल इज नॉट फिजिबल। तो यहाँ से अगर होता है तो सेकेंडरी रेडिकल है, तो यहाँ से हमें अभी जो, ठीक है, ले जा भाई अपना एक प्रोटॉन, ठीक है। जैसे लेके गया गया तो ये यहाँ पर कोलैप्स होगा। गॉट इट? इसको रीअरेंज करेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन में चले जाएंगे। इतना समझ में आया आपको? इतना यस समझ मैम। में आया? यस मैम। चलो और एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। अभी दो तीन एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ, थोड़ा ट्राई करो, ठीक है। देखो, हर एक
एग्जाम्पल अपने आप में बहुत डिफरेंट है। हाँ। या फिर इसको ऐसे करते हैं। चलो पहला एग्जाम्पल सॉल्व करो। आज ही हम सॉल्व करके देंगे, ठीक है। दो दो मिनट दूंगी मैं, हाँ, एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। इसमें दो रिएक्शन कंडीशन दी है, लिक्विड फेज एंड द गैसियस फेज। अच्छा, कर पा रहे हो तो बताओ, पॉसिबल है कि एक्सप्लेन करूं? तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। करते जमतंय का सगळ्यांना? Yes, ma'am. येस मॅम. 2 मिनिट देते आणि नंतर मग आपण सॉल्व करू, राईट? 10:50 झाले, 10 वाजून 52 मिनिटांनी आपण थांबू, and then we'll solve the problem. Okay?
चलो ठीक है, सॉल्व किया, कर पाए क्या? Yes, ma'am. चलो इसको फोकस करते हैं। देखो अभी मैं वो सारी चीजें नहीं लिखूंगी, आपने लिखना है, लेकिन मुझे ना, Yes, ma'am. हमने लिखा क्या, ये एटलीस्ट यहाँ तक तो सॉल्व करो। S1 एंड P1 यहाँ तक तो किया होगा सबने, Yes, ma'am. ठीक है। फिर आपने अल्फा क्लीवेज लगाया होगा, यहाँ Yes. किया, और बाय रेडिकल फॉर्म किया होगा, बराबर। Yes, ma'am. अल्फा क्लीवेज लगा देते हैं और अब हम लोग अभी अल्फा क्लीवेज लगा देते हैं इसमें, ठीक है। अब अल्फा क्लीवेज, नाउ दिस इज अ सिमेट्रिकल कीटोन, ये सिमेट्रिकल है, तो मैं कहीं पर भी अल्फा क्लीवेज लगा दूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो अभी मैं इसमें अल्फा क्लीवेज लगा देती हूँ। दो डॉट्स कहाँ लगाया मैंने, ये दोनों के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर भी फिनिल रिंग है, यहाँ पर भी फिनिल रिंग है। सो दिस इज माय प्राइमरी प्रोसेस, दिस इज अ प्राइमरी प्रोसेस से मुझे ये बाय रेडिकल मिला है, ठीक है। अब इसमें अगर ये रिएक्शन जो है, यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन दी गई है वेपर फेज, ठीक है। अब वेपर फेज में रिएक्शन कंडीशन दी गई है, इसका मतलब मुझे इसको डी कार्बोक्सिलेशन करना जरूरी है, ठीक है। सो डी कार्बोक्सिलेशन अगर मैं करती हूँ तो मुझे अभी देखो क्या मिलेगा, सो दिस इज अ बाय रेडिकल आई एम गेटिंग, और मेरा ये बना। अभी देखो कि आगे की बात क्या है, कि अगर मैं बोलती हूँ नाउ दिस इज अ, अब ये कौन सा है, ये भी टर्शरी है और ये भी टर्शरी है, राइट। ये जो रेडिकल है ये टर्शरी है कि नहीं, Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. और ये भी टर्शरी है। तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो टर्शरी इज हाईएस्ट द स्टेबल रेट, ठीक है। तो कायदे से स्टेबिलिटी अगर करता है तो ये रिकॉम्बिनेशन में हमें ये प्रोडक्ट दे सकता है, बराबर, हाँ, Yes. है ना। कायदे के अनुसार हमें ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए, बट दिस प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ द रिंग स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेंज बात, क्योंकि 4 मेंबर्ड रिंग इज हाईली अनस्टेबल, है ना, हाईली अनस्टेबल। So this recombination doesn't occur, ठीक है। ये recombination हो नहीं सकता because we are getting a 4 membered ring and 4 membered ring is highly strained ring. So 4 membered ring is not going to obtain over here. So 4 membered ring is not going to form, right? Then what is happening? अब इसमें तो हमने ये तो दिखा दिया है कि ओके डी कार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस, डी कार्बोक्सिलेशन होता है, और साथ में ये बाय रेडिकल भी फॉर्म होता है विच इज हाईली स्टेबल है। तो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, सो हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, देखो अब इसके पास एक रेडिकल, एक इसके पास एक रेडिकल है, ठीक है, ये रेडिकल इसके पास है और ये रेडिकल इसके पास है, ठीक है। नाउ देयर विल बी अ अगेन disfragmentation, this is a disfragmentation occurs, so here the fragmentation takes place। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पर आ जाएगा,
तो क्या बनेगा? तो ये रेडिकल और ये इलेक्ट्रॉन मिलके आपको कुछ ऐसी मॉलिक्यूल देखने को मिलती है। इसको डिस्प्रपोर्शनेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। समझ में आया कि देखो रिएक्शन यहां तक सब ठीक चलता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा टर्न आता है कि आपको दूसरे टाइप के टोटली अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द बेसिक केमिस्ट्री। जो बेसिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट है वो हमेशा आपको याद रखने हैं। अब ये जो कंसेप्ट है कि 3 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग है, अगर फॉर्म नहीं होती है, इसकी जगह 5 मेंबर्ड रिंग है तो वो जरूर फॉर्म होती है। ठीक है, so 4 membered ring is not going to form over here only because of the highly strained highly strained molecule develop होता है। So because of that the disproportionation takes place, or the fragmentation, sorry, this is a fragmentation, not disfragmentation, disproportionation and the fragmentation. So the fragmentation takes place over here, and the fragmentation will give you, so there are 2 molecules. So this is nothing but the 2 molecules of alkenes. So this is your product. This is your product for this molecule. कितने लोगों को का ठीक आया ये आंसर? Yes. Okay. नहीं आए तो बताओ, आया तो भी बताओ, कोई पनिशमेंट? हाँ, नो मैम नहीं आया। आपको आएगा ही नहीं, क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया नहीं ना। कंसेप्ट अलग है, इसलिए हर प्रॉब्लम मैंने ऐसे प्रॉब्लम्स दिए है कि जिसमें हर प्रॉब्लम में एक नया कंसेप्ट जनरेट हो रहा है ना। इसको भी अभी हम कर देखते हैं। कहां से फ्रेगमेंटेशन मैं करूंगी बताओ? यहां से करूंगी, अल्फा 1 से करूंगी, अल्फा 2 से करूंगी। अल्फा 2 से करूंगी तो सेकेंडरी फॉर्म होता है, अल्फा 1 से करती हूँ तो टर्शरी फॉर्म। ठीक है, सो आई विल सिलेक्ट दिस वन। ठीक है, अल्फा 1 हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं अभी कौन सा फ्रेगमेंट होता है। सो आफ्टर फोटो, बाकी सबने ट्रिपलेट सिंगलेट ट्रिपलेट कर दिया? Yes. ओके, सो दिस इज फर्स्ट रेडिकल, सॉरी 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 सॉरी, okay, so this will be the first radical, and this will be a second radical. ये 2 फॉर्म हो गए। ठीक है, अब रिएक्शन हम वेपर फेज में करके देखते हैं। हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। वेपर फेज में हम करके देखते हैं। देखो वेपर फेज में हम करेंगे तो प्राइमरी प्रोसेस में तो ये फॉर्म हो गया। सेकेंडरी प्रोसेस में हमें क्या करना है? इसमें से अगर हम CO निकालते हैं तो क्या हमें स्टेबल मॉलिक्यूल मिलेगा, स्टेबल रेडिकल मिलेगा? यस मिलेगा, है ना। देखो फिर से स्टेबिलिटी, अलेल रेडिकल्स आर, अलेलिक रेडिकल्स आर वेरी स्टेबल। एलेलिक रेडिकल्स मतलब ये वाला रेडिकल है। इसका क्या मतलब है? बेंजिल रेडिकल्स आर, दिस इज अ बेंजिल रेडिकल, है ना, ये इस फॉर्म में है। बेंजिल रेडिकल्स आर आल्सो वेरी वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, so this intermediate is highly stable, so that's why decarboxylation takes place. ठीक है, decarboxylation होने के बाद हमें क्या करना है? रिकॉम्बिनेशन करना है। 2 स्टेजेस में हमें रेडिकल्स मिलते हैं। एक जो रेडिकल है ये A फॉर्म हुआ है, और दूसरे सेकेंडरी स्टेप में हमें B रेडिकल मिला है। ठीक है, सो लेट अस हैव रिकम्बाइन। अब यहाँ पर देखो फिनिल
unsymmetrical और if we see A and B, लास्ट टाइम मैंने जब बात की थी कि अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में हमने बात की थी कि बी रेडिकल, देखो याद करो पिछला जो मैंने अनसिमेट्रिकल का एक्सप्लेन किया था, है ना। इसमें टू पॉसिबिलिटीज मैंने बताई थी कि A कंबाइंस विद B एंड B कंबाइंस विद B, बराबर है। अब इसमें क्योंकि B कंबाइंस विद B इसलिए है कि ये बाद में फॉर्म हुआ है और इतने झट से फॉर्म होता है और इतना अनस्टेबल है कि ये अपने आप में ही फिर से रिएक्ट होकर रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन A इज क्वाइट स्टेबल, तो ये A के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। लेकिन यहां पर जो बात है ये थोड़ी अलग है, देखो कैसे अलग है। You know that the benzyl, even the tertiary radical, the allyl radical, तो इसकी भी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा है टर्शरी से, समझ में आया। टर्शरी अपने आप में बहुत स्टेबल है और बेंजिल रेडिकल भी अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये अपने आप में रिकम्बाइन ना होके A combines with B, so you will get the formation of ये समझ में आया आपको। अनसिमेट्रिकल की बात करते थे तो वहां पर हमने देखा कि B रिएक्ट्स विद B, लेकिन यहाँ पर अभी हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल इज इक्वली इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है दिस रेडिकल इज हाईली स्टेबल देन द रेडिकल फॉर्म, द रेडिकल विच इज फॉर्म इन द फर्स्ट केस और इन द फर्स्ट प्रोसेस, प्राइमरी प्रोसेस। ये अपने आप में काफी स्टेबल है। दूसरे प्रोसेस में, सेकेंडरी प्रोसेस में जो फॉर्म हुआ रेडिकल है वो उससे भी ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये दोनों की आपस में रिएक्शन की पॉसिबिलिटी जो है, A रिएक्ट्स विद A या B रिएक्ट्स विद ये रिवील आउट होती है एंड A रिएक्ट्स विद B, ये अपने आप में रिएक्ट नहीं होते, ठीक है। सो B रिएक्ट्स विद A and you will get only one product. There is no possibility of getting another product. ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? Yes, ma'am. ओके, यस मैम। अच्छा क्लास है तुम्हारी अभी मैम शुरू हो गई है। शुरू हो गई? भूसे सर की क्लास शुरू हो गई, मीटिंग आईडी भेजिए चलो सर। चलो सो थैंक यू सो मच, ठीक है। मैम क्लियर? हाँ बोलो। मैम फर्स्ट एग्जाम्पल में हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन का कोई मतलब सीन नहीं है क्या? होगा नहीं वो? नहीं हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन नहीं, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है ना। अब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन भी होता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन भी होता है वहां पर होता है, लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन अगर होता है तो फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। ओके मैम। वो अगर सर की क्लास कब है अपने? ठीक है कल देखते हैं, आज रुक जाते हैं काफी, 2 घंटा, 1.5-2 घंटा हो गया ना। ठीक है मैम। सो विल सी टुमारो, ओके। ओके मैम। सो शुड आई स्टॉप? यस यस मैम। सब लोग आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ सब लोग। थैंक यू, क्योंकि आपकी प्रेजेंट या आपकी अटेंडेंस लगाना पड़ता, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू मैम। चलो।